Hello students, how are you? I hope you are well. Okay, so now are you ready to see this video? Okay, beta. Now let's start a new video. In this new video, I am going to discuss a new chapter. Name of that chapter is data handling. Okay, beta. So firstly, you will see this video. After that, I will give you some questions from previous chapter. Actually, all the topics from the previous chapter I have explained. But some questions based on that topic will be given after this. Okay, so now a small topic of new chapter, data handling, that is data types, I am going to discuss. So now you try to understand what do you mean by data types. Name of chapter written at line number 1 and name of topic which is of this chapter, that is data type. Okay, you know beta, the following data types can be used. Some data types I am selecting, you can find those data types: int, float, boolean and complex. Actually before this you have read about these data types, int, float and boolean, but you are not aware about the complex data type. This is new one. So today mainly we will discuss new data type, that is complex. But before this I want to discuss, or I want to make you revise some other data types which I have discussed before this. In previous videos I have discussed those. So int, float and boolean. यहाँ देखिए बेटा, at line number 3 जैसे मैंने लिखा है print, यहाँ पे एक लाइन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है मैंने प्रिंट int इनपुट एंटर ए नंबर। इसमें पहले हम लोग क्या करते थे, पहले एक वेरिएबल ले लेते थे, वेरिएबल इज इक्वल टू लिखते थे हम लाइक दिस। इससे पहले हम लोग लिखा करते थे, जैसे कोई वेरिएबल लिया सपोज n इज इक्वल टू, देन वी यूज टू राइट लाइक दिस। ये देख रहे हो बेटा, like this we used to write and we could print the value of n just by using print statement. Okay, but here in one line we are doing both the things, that is getting input and printing output. Both the things we are performing in same line. So for that purpose we are using line number 4. So do you want to see its output? So let me execute this line. In output line you can get beta enter a number. Can you find this? So here you can enter any value and now you can find its output. Okay beta. So now I am going to make this line comment and going to explain some other lines. Similarly float values भी आप ले सकते हैं, अभी उनको भी डिस्कस करेंगे. But here one data type which is new, that should be explained before other data types, because you are aware about other data types. This one is new, so this data type I am going to explain. Now see beta, at line number 6, complex number. You have read in your maths books that complex numbers can be represented in this form, a plus bi. In this form complex numbers are represented. Okay beta, where a is the real number and b is the fractional part and I is the imaginary value. तो इन सारी वैल्यूज को लेने के लिए यहाँ पे मैंने एक लिखा है, बट इन पाइथन एक लाइन नंबर 7 पे देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन पाइथन रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे. तो a और b की वैल्यूज आप कोई भी ले सकते हैं, बट j इज इंपॉर्टेंट हियर. यू विल ऑलवेज यूज j, लाइक एट लाइन नंबर 10 जैसा मैंने यूज किया है. यहाँ पे देखिए some quotes I have written. You try to understand these quotes. Here बेटा, a is equal to 5 plus 2.3 j. तो जो इस फॉर्म में डेटा लिखा है 5 plus 2.3 j, this is the form of complex number. It means we are assigning a complex number to a variable and name of that variable is a. Okay, so now in a complex number, using print a we can print that complex number. और लाइन नंबर 12 पे मैंने लिखा है a dot real. It means ये जो 5 वैल्यू मैंने बताया था, this is the real value of this complex number. Okay,
and imaginary value, this is the imaginary part 2.3, ये आपको मिल जाएगा यूजिंग दिस। तो प्रिंट ए डॉट रियल एंड ए डॉट इमेजिनरी, इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पे प्रिंट कर सकते हैं। इसको मैंने अभी बनाया कमेंट एंड जस्ट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट these lines, these 4 lines from 10 to 13 and see its output. एक लाइन और एक्टिवेट है, इसको पहले मैं कमेंट बना दूं, then you will get its output properly. अब देखिए बेटा, नाउ दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट कोड विच वी वांटेड टू रन। सी बेटा 5 है तो यहां पे 5.0 यू गेट फॉर ए डॉट रियल, 5 प्लस 2.3 जे किसके लिए मिल रही है? फॉर ए, बिकॉज कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए। देन ए डॉट रियल से इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट यू कैन फाइंड हियर। ओके, सो लाइक दिस वी कैन हैंडल अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बेटा, अब देखिए इसको हम कमेंट बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, और यहां पे जैसे क्वेश्चन है हमारा कि टू फाइंड द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज क्वेश्चन इज देयर टू फाइंड सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कैसे कर सकते हैं? आई थिंक यू कैन डू दिस। जैसे यहां पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम कोड में इसको यूज किया है। यू कैन फाइंड solution to this question। यहां मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं। क्वेश्चन इज देयर राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ रियल एंड imaginary value of a कॉम्प्लेक्स नंबर। स्पेलिंग गलत होगा ये, डोंट वरी। ये मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया। इसका सॉल्यूशन बेटा देखिए, आई हैव रिटन अ सॉल्यूशन फॉर दिस। नाउ बेटा see this output. Here I have taken a complex value x is equal to 2 plus 1.2j, then print x, then in t1 I have got x dot real and in t2 x dot imaginary। तो जो real and imaginary हैं ये attributes हैं। ओके, इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इन एट्रीब्यूट्स को हम यूज कर रहे हैं। देन प्रिंट t1, प्रिंट t, दैट इज इन t वी आर गेटिंग सम ऑफ t1 एंड t2। ओके बेटा, इसका आउटपुट आपको यहां दिख जाएगा। यहां पे देखिए, ये यूजिंग प्रिंट x यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यूजिंग t यू कैन फाइंड सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 एंड 1 प्लस 2 जो इमेजिनरी पार्ट है एंड रियल पार्ट है, दोनों का सम आपको मिल गया। इज दैट क्लियर? अब देखिए वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज वी वर एंटरिंग वैल्यूज फॉर आईएनटी एंड फ्लोट, आईएनटी एंड फ्लोट का यूज करके हम लोग क्या करते थे? रन टाइम पे वैल्यूज इनपुट करते थे। ये तो हमने क्या किया है, प्रोग्राम डिजाइन टाइम पे लिख दिया है x इज इक्वल टू 2 प्लस 1.2j। सपोज एट रन टाइम वी वांट टू इनपुट a complex value, then how this can be performed? So to do this we can execute following lines. Here beta I have written x is equal to complex। तो जैसे आप लोग float value को यूज करते थे इनपुट करने के लिए रन टाइम पे, you used float here at this place। You can use int to input integer value, float to input float value, and for boolean value you can use bool। Similarly you can use complex here। okay, it is also a new data type used in Python। okay, in other languages like Python like Java and C++, this data type is not used।
This is the new data type which is used in Python language. Name of the data type is complex. तो रन टाइम पे इनपुट करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ int float ले रहे थे, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स लिख दिया, देन इन ब्रैकेट इनपुट एंटर ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रिंट x, इसको प्रिंट कराना. So now we are going to execute these two lines which are at line number 24 and 25. Now beta, see what is the output. Enter complex number. Now we can input something जैसे 4 plus 3j. मैंने इस तरह से लिख दिया. You can get this. But j is important. J is very important. Suppose I input it again, execute it again, and if I input 3 plus, मैंने लिखा 2 plus 3i, तो देखिए यहां पे आपको प्रॉब्लम है बेटा. तो दैट इज 2 plus i will not be taken. 2 plus j मतलब मीन्स कि a plus xj की फॉर्म में ही डेटा a plus bj इस फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. j इज इंपॉर्टेंट. j ऑलवेज आपको लेना है. j कैन नॉट बी चेंज बट वैल्यू ऑफ a एंड b कैन बी चेंज बाय यूजर. इज दैट क्लियर? ओके. तो यहां बेटा जैसे मैंने इसको रन किया तो वो हम वैल्यूज नहीं ले सकते थे. One more thing is very important here, that is यहां जैसे मैंने लिखा इसको b boolean वैल्यूज के लिए. तो boolean वैल्यूज भी हम लोग ऐसे ले सकते हैं. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट boolean वैल्यू बट शायद नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं. देखिए फॉर boolean वैल्यू यहां पे हम क्या लेंगे, ट्रू या फॉल्स. तो फॉल्स आपको दिख जाएगा. एक्चुअली इसके लिए पहले आप देखिए ट्रू क्यों दिख रहा है, ध्यान देने की चीज है. मैंने डाला फॉल्स बट आउटपुट आ रहा है ट्रू. एक्चुअली इससे पहले हम इसके लिए एक वैल्यू ले चुके हैं बी के लिए, दैट वाज ट्रू एक्चुअली. दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग ट्रू फॉर बी. अब अगर मैं इसके लिए यूज करूं एक अदर वेरिएबल, सपोज आई यूज हियर एस और यहां एस कर दिया. अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अभी भी ट्रू वैल्यू दे रहा है. एंटर बूलियन वैल्यू बूल int. ओके, ये मैं बताऊंगा कि ये फॉल्स देने पे भी ट्रू क्यों दे रहा है. आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टर दिस. इसको भी कमेंट बना लेते हैं. और यहां पे देखिए एक चीज मैं और बता दूं बेटा, जैसे एट लाइन नंबर 24 आप देख रहे हैं, यहां पे से एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं तो यहीं पे हमको इनपुट करना होता है. जैसे 6 plus 3.5j यहां पे इनपुट करना है. बट इफ यू वांट टू इनपुट इट इन नेक्स्ट लाइन देन व्हाट कैन बी डन. तो सिंपली स्किप सीक्वेंस यू कैन यूज /n हियर. अगर आप /n लगा लेंगे, इन दैट केस द वैल्यू विच यू विल इनपुट दैट विल बी टेकन एज इनपुट इन नेक्स्ट लाइन. ओके बेटा. सो नाउ अब देखिए बेटा इसमें डिफरेंस है आउटपुट में. अब यहां पे पॉइंटर आपको मिल रहा है, यहां पे आप कुछ ले सकते हैं वैल्यू 5 3.4j. ओके बेटा. सो लाइक दिस यू कैन यूज सम डेटा टाइप्स हियर. ओके बेटा. तो कुछ डेटा टाइप्स की वैल्यूज हैं जिनको हम लोग इनपुट करा सकते हैं यहां पर. ठीक है, अभी बूलियन को मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको. नाउ you watch this video. After this I will tell you about the boolean. Okay beta.